back in our next lecture of PCR. In last lecture, we have discussed about the introduction of PCR, why we are using SCRs in place SCR or thyristors in place of diode. Okay, how we can vary the output voltage with the help of thyristors, different types of circuits that we possible with the load, with respect to load, we have discussed, and few of them, that is RL with R and RL, that we have discussed. Today we will discuss RL with FT, and one more thing is left over here, that is RLE load. Okay, single phase half wave control rectifier with RLE load, not FT. Okay, we have RLE load. ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट with our new topic, that is RL with FT. Okay, so here again I have described the whole process over here, how it will work with RL load. RL load हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. FD लगेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, what we will get. So moving towards its working. Before starting working, we should go through across the figure or circuit, that is we are having source voltage, we are having thyristor, we are having RL load, and additionally we have FD. So what is the requirement of FD? FD, that is freewheeling diode. freewheeling diode आपका दो काम करता है. एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा जो लोड के क्रॉस करंट है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है. ठीक है, अब अगर हम प्रीवियस वेव फॉर्म को, जो हमने RL लोड के लिए स्टडी करी थी, RL लोड के लिए जो वेव फॉर्म स्टडी करी थी, इसमें देखिए वोल्टेज वेव फॉर्म देखिए, और फिर करंट वेव फॉर्म देखिए. और अब आ जाते हैं जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वोल्टेज की वेव फॉर्म देखिए और इसमें करंट की वेव फॉर्म देखिए. व्हाट आर द मेजर चेंजेस यू आर लुकिंग ओवर हेयर? द मेजर चेंजेस दैट वी कैन नोटिस here, we are not getting any negative output voltage. Here we are getting the output voltage from alpha to pi. ठीक है, very minutely if we compare both the output voltage waveform, output current waveform, here we are getting negative peak, but here we are not getting any negative peak due to impact of FT. ठीक है, जब वर्किंग देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे. फिर करंट की बात कर लेते हैं. करंट में आपकी जो करंट थी वो विद RL लोड. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो द डिफरेंस बिटवीन द output current over here is this portion, and this portion we are not getting here. ठीक है, आपकी जो है यहाँ पर आउटपुट करंट नहीं मिल रही, बट वहाँ पे मिल रही है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. दीज आर द बेसिकली मेजर चेंजेस व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ FD विद RL लोड. ओके, चलिए. Initially when we are applying supply in positive half, this will be forward bias. ठीक है, obviously positive here, negative here, this will be forward bias. At an angle alpha we will trigger it. Trigger means we will fire it. Firing angle alpha पे हमने इसको गेट पल्स दी. जब गेट पल्स देंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू होगा. कहाँ से? अल्फा से. अब आपकी करंट यू फ्लो हुई फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड. वी आर गेटिंग आउटपुट पॉजिटिव या नेगेटिव, because inductor is getting charge
या स्टोरिंग एनर्जी, गेटिंग चार्ज नहीं बोलूँगा, स्टोरिंग एनर्जी, वी विल से stored energy with this polarity, positive here, negative here. Okay. When it comes to pi, when supply voltage comes to pi, this will be reverse bias just because of negative voltage applied here. But in case where FD was not present, due as inductor has stored some energy, it will release its energy. Now it will release its energy, but हमेशा हमारा जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस है, और इसको फॉरवर्ड बायस कराने के लिए जब इसकी पोलैरिटी, मतलब आपकी पहले ये पोलैरिटी थी, अभी क्या हो जाएगी उसकी पोलैरिटी ये, और ये जब एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी इफ़ वी सी दिस एलिमेंट इज़ ऑल्सो गेटिंग फॉरवर्ड बायस, as it is already for reverse bias, the inductor will not release its energy during across this because it has low resistance path over here, FT, और ये हमारा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस. अब जब ये फॉरवर्ड बायस होगा then what will happen, this is open circuited. Now we have only only remaining circuit is FD R L, and this is negative, this is positive, means current will flow like this in this path. Okay, let's see over here, the current will flow like this. ठीक है, अब क्योंकि आपका थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको कोई नेगेटिव हाफ में आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा. सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर की इसको ऑन कराने में रिलीज़ हो जाएगी, और जब इसको ऑन कराने में एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी देन लोड के अक्रॉस एक्चुअली पाई पे आपका वोल्टेज रिवर्स हो रहा है. ठीक है, रिवर्स हो रहा है, तो ये वाला पूरा सर्किट आपका तरीके से गायब हो जाएगा. नहीं, सोर्स विल नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, so inductor will work as a source. We can say that inductor will work as a source for this particular time. From where? From pi to 2 pi plus alpha. ठीक है. One thing I would like to more explain over here, this could be continuous and discontinuous, both type. Here we have taken the example of continuous, as inductor has so much stored energy that when thyristor is getting on in next positive half cycle, the inductor will carry on decreasing, releasing its energy till the point. ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूस लोड करंट बोलेंगे. तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपकी लोड करंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो रही है, it is not getting zero, and throughout the waveform हमारी ऐसे चलती रहेगी. ठीक है, so what is happening over here, when inductor releases its energy, FT will be forward bias and current will flow like this in this loop, and we will get this over here. So it is clear now. Okay, now we will discuss about the VT, drop across thyristor. Drop across thyristor will be same, मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ तक हमें आउटपुट मिल रहा है पाई तक, फिर पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस द थायरिस्टर, इट इज़ ड्रॉप. अब एक चीज़ और मैं कहूँगा, हालांकि आप इतना एनालिसिस मत करिएगा, बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, ये ऐसा आउटपुट वोल्टेज आपने कहाँ देखा था, आपने देखा था अक्रॉस द रजिस्टर लोड, एंड सेम ड्रॉप यू हैव नोटिस्ड फॉर आर लोड. अब बाद में जाएगा, कंपेयर करिएगा दोनों की वेवफॉर्म को, यू विल सी वी नॉट इज सिमिलर एंड वी टी इज सिमिलर. ठीक है, व्हेन वी हैव आर एल लोड बट एफ डी भी हमारा कनेक्टेड हो. ठीक है, तो अब अगर हम इसका वोल्टेज निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, अब क्योंकि ये बिल्कुल आर लोड की इक्वल है, तो आर लोड का हमारा वेवफॉर्म क्या आया था, सॉरी इक्वेशन क्या आया था, वी एम
इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन कहाँ से, अल्फ़ा से पाई तक बी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा था, कोई बताएगा? वी वे आर गेटिंग, सॉरी दिस इज़ नॉट वी एम, दिस इज़ वी नॉट। वी नॉट इज इक्वल टू वी एम बाय 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फा। वी आर गेटिंग लाइक दिस। सो सिमिलर आउटपुट वोल्टेज की में वेवफॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पर करंट की थोड़ी एनालिसिस हमें करनी पड़ेगी, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस और ट्रांजिएंट एनालिसिस अभी करंट पे फॉलो करेगी, दोनों हम करंट फाइंड आउट करेंगे। वी हैव डन इट ओवर हियर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस निकाली हैं और आपकी सारी क्वेश्चन को हमने किया हुआ है। ठीक है, और आपका वी नॉट देखिए ये आ रहा है। ठीक है, एवरेज करंट आपकी ये आ रही है। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग एफ टी इन द आर एल लोड? वेरी फर्स्ट, आपकी जो लोड करंट इम्प्रूव हो रही है उससे आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा और एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड परफॉर्मेंस आपकी बेटर होगी। किसकी? पीसीआर की, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंगल फेज पीसीआर आरएल लोड with FT. Now we will discuss about the half wave PCR with RLE load. Okay. Before starting about the RLE load, I would like to discuss something before starting this topic. As we have now a component E. E means battery, EMF. और अगर EMF है दैट इज़ इट विल अपोज द अप्लाइड वोल्टेज कितना, जितना कि इसके पास पोटेंशियल है। ठीक है, अब बहुत से राइटर्स ने इसको बैक EMF बताया है, क्योंकि हम लोग PCRs के थ्रू स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर, क्योंकि वोल्टेज हम वेरी करते हैं और DC मोटर का हम लोग स्पीड कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, तो इसको बैक EMF बताया है, बट इसको हम यहाँ पर एज ए E कांस्टेंट डीसी सोर्स ई कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर एक वोल्टेज के क्रॉस अपोजिट में ई वोल्टेज लगा है तो ये जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस है तो इसको ये कहीं ना कहीं इसको अपोज करेगा, ये वाला पोटेंशियल हमारा तो अपोज करेगा। तो हमें वहाँ पर क्या देखने वाली बात होगी? अब देखिए यहाँ पर जो सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म है उसमें देखिए हमारी एक कांस्टेंट ई वाली वेवफॉर्म है। सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म हमारी इससे जा रही है। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट ई है। तो जहाँ जहाँ इस ये वेवफॉर्म को कांस्टेंट ई वाली वेवफॉर्म आपकी कांस्टेंट ई वाली वेवफॉर्म आपकी कट कर रही है। ठीक है, इफ़ वी लुक अबाउट द फायरिंग एंगल अल्फा, दिस इज हियर, इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ मोर देन दैट। वाई सो? क्योंकि जब तक अप्लाइड वोल्टेज आपका बैक EMF वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आपका थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, तब तक आपका थायरिस्टर क्या करेगा? कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, द अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर दैन थीटा। थीटा जहाँ पर भी आपकी जो वेवफॉर्म कट कर रही है इस वाली साइनसोइडल वेवफॉर्म को, उसको हम जहाँ पे कट करते हैं उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा को θ1 देखिए, θ2 हमने लिख रखा है, क्योंकि एक हाफ में आपको 2 बार ये वेवफॉर्म कट करेगी। ठीक है, पॉजिटिव हाफ में। ठीक है, 2 बार ये वेवफॉर्म कट कर रही है तो θ1 θ2। तो जब भी हम फायरिंग एंगल अल्फ़ा लेंगे तो इतना लेंगे कि वो इस वैल्यू से हमारा क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है प्रीवियस में। इन ए सिंगल वेव हाफ वेव कंट्रोल RLE लोड, the counter EMF load in the load may be due to the battery or a DC motor. ठीक है, the minimum value of the firing angle obtained from the relation that is Vm sin omega t is equal to E. तो Vm sin omega t is equal to E, तो वहाँ पर sin omega t this will occur at an angle θ1.
तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा वन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ई बाई वी एम। तो हमारी जो थीटा वन की वैल्यू है, थीटा वन की वैल्यू है, इन केस अगर थायरिस्टर को हम फायर करते हैं अल्फ़ा लेस देन थीटा वन, तो हमारा ई क्या हो जाएगा, बी एस से ज़्यादा हो जाएगा। जब बी एस हो तो रिवर्स बायस होगा और हमारा ये ऑपरेट नहीं करेगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने आपको वहाँ पे बताया है, ठीक है, ये ऑपरेट नहीं करेगा। इस वजह से हम जो अल्फ़ा की वैल्यू लेते हैं वो हमेशा किससे ज़्यादा, थीटा से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। मानिए थीटा आपका 15 डिग्री है तो अल्फ़ा की वैल्यू हम 16, 17, 18, 19, 20 वॉट एवर मोर देन 15 वी विल टेक, ठीक है। चलिए अब वेव फॉर्म देख लेते हैं इसकी जल्दी से। और यहाँ पे जो एनालिसिस है ये वाला पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है। दिस पार्ट इज़ टू बी डन बाय यू। दिस इज़ नथिंग बट कुछ इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व किया गया है विद रिस्पेक्ट टू सर्किट, और सर्किट के अकॉर्डिंग इसको समझाया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं उसको। इसके आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म में तो आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी, वर्किंग समझ में आएगी तो आप ये भी काम कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की, वेव फॉर्म की। तो यहाँ पर हमने जो पहले कहा कि हम जो अल्फ़ा लेंगे वो ग्रेटर देन थीटा वन लेंगे, तो फिर से वही काम। और यहाँ पर एट अल्फ़ा थायरिस्टर टी विल बी ट्रिगर एंड करंट विल फ्लो लाइक दिस इन द सर्किट। तो थायरिस्टर टी हमने अल्फ़ा एंगल पे ट्रिगर किया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको बराबर मिलता रहेगा, ठीक है। और वेरी क्या करेगा, एसी वाला पार्ट आपका वेरी करेगा, ठीक है। एसी वाला पार्ट है आपका वो वेरी करता रहेगा। तो आपको जो कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज में, क्योंकि ये लोड साइड पे आपका है। इसीलिए इसको बैक ईएमएफ बोल रहे हैं, डीसी मोटर बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि डीसी मोटर हमारा बैक ईएमएफ प्रेजेंट हो जाता है। अब देखिए तो अल्फ़ा एंगल पे जहाँ पे इसको हम ट्रिगर किए वहाँ से हमें आउटपुट मिलना शुरू होगा एंड इट विल कंडक्ट अप टू वेयर, पाई। अब क्योंकि आपका आर एल लोड है विथ ई, आर एल लोड है, एल लोड की वजह से आपका जो आउटपुट होगा यहाँ एक्सटेंड हो जाता है नेगेटिव हाफ में, ठीक है। आर एल लोड के लिए हमने देखा था कहाँ तक, बीटा तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट में आपका जो है बीटा तक जो एक्सटेंड कर रहा है, उसके बाद आपको फिर से कांस्टेंट डीसी मिल रहा है क्योंकि बैक ईएमएफ यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। और ये कहाँ तक मिलेगा, फिर से 2 पाई तक। फिर यहाँ पे आपका थायरिस्टर वर्क करना बंद कर देगा, इस जगह पे बीटा पर आपका थायरिस्टर वर्क करना बंद कर देगा, यानी थायरिस्टर आपका फुल्ली ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, लेकिन रिवर्स बायस भी ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। और फिर आपको कांस्टेंट डीसी वापस रीच हो जाएगा, कांस्टेंट डीसी आपको मिलना लगेगा। एट द सेम टाइम करंट विल इंक्रीज लाइक दिस एज इन आर एल लोड, ग्रेजुअली राइज करेगी फिर डिक्रीज़ करेगी, जहाँ पे आपका थायरिस्टर्स के क्रॉस एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, उसको रिवर्स बायस ऑपरेट कराने में, नेगेटिव हाफ में ऑपरेट कराने में, ठीक है। और फिर कहाँ तक, 2 पाई तक तो आपको ऐसे ही आउटपुट मिलेगा। फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा पर फिर वापस T1 को ट्रिगर करेंगे, फिर वहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब आपकी ये वाली वेवफॉर्म ड्रॉ की जा रही थी तो आपका कुछ ये पोर्शन, छोटा सा पोर्शन यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है। जो कट हो रहा है वो हमें इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो आपको कोई भी ड्रॉप नहीं मिलेगा। फिर आपका बीटा एक्सटेंशन एंगल पे आपका थायरिस्टर ऑफ हो रहा है, फिर आपको क्रॉस ड्रॉप मिलेगा और फिर माइन्यूट सा ड्रॉप मिलता रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव पीसीआर विथ आरएलई लोड, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने लिख रखे हैं, ये आपको बेसिकली याद करने हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनको क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। और वी विल डिस्कस ड्यू क्लास अबाउट दीज न्यूमेरिकल्स। सो फॉर टुडे
I would like to close my topic, over my lecture over here. Thank you so much for watching and learning. Have a good day.